So what's up again guys, this is Shore and back again with a new video after a long time. Today I will teach you about class 9 India size and location of geography. There are 4 parts of history. There are 4 parts of SST. 1 geography which we study today, 1 history, 1 civics and 1 eco. Eco is a new subject for all of class 9. So let's go. 1 second. So today we will study geography, India, size and location. What is India? Which country is India? Which continent does India lie? Which ocean does the India lie on? Size. What is the size of India? Location. Where India locates? This type of question we know in this chapter. So we study about this only. This is a very small chapter that I picked up from geography. So let's start. Like, subscribe my channel. Tech Expert Study Materials. You can find for class 8 some videos because I have no time for making the video that time. But now I am coming with new videos every day and streaming every day with videos. India's size. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted society economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. So, India is one of the ancient civilization in the world. India जो है ancient civilization मतलब जो पुरानी जैसे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, गंगा सिविलाइजेशन हो गया, ये सब जब हमने पढ़ा था, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली जो हमने पढ़ा था क्लास 6, 7, 8 तक हमने जो पढ़ा है, यही वही है कि सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडिया वर्ल्ड का. और इसने अचीव किया है मल्टी सोशल इकोनॉमिक हो गया. जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक. हाँ, जैसे मोदी एग्जांपल लेता है, मोदी अब जाता है दूसरी कंट्रीज में अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करने. वो सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड्स मतलब last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of जो इंडिया है. इंडिया ने अब बहुत सारा अपना नाम कमाया, मतलब जो कहते हैं ना कि अपनी पहचान बनाई है, वो है उसमें एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी मतलब जैसे मोबाइल फोन्स, नए मोबाइल फोन्स, नई चीजें, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं हम. India has also contributed significantly to the making of world history. आपको जैसे पता होगा कि इंडिया जो आता है 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, तो इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो इंडिया ने अपना योगदान दिया है वर्ल्ड को बनाने में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में नाम बनाने में, कि जैसे हमने ये किया, मोदी कहते हैं ना कि हमने ये किया, हम ये करते हैं और हम ये करेंगे. अच्छी जो बातें करते हैं मोदी जी, वो बताया जाएगा, हमारी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि मोदी ने ये बनाया, मोदी जी ने ये बनाया, जो अच्छी चीजें की है मोदी जी ने वो किया, वो सब लिखा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया की तरफ से, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकेशन. नाउ फर्स्ट टॉपिक, लोकेशन. Okay, let's do location now. What is location? Can you see in this map, in this world map, where is the location of India? I will zoom for you also. What is the location of India? India is situated in Asia. Okay, this is Asia. This is Asia. This is Asia. All this pink color is Asia, and this yellow color is India. Okay. So, India is located in south of Asia, southmost Asia. Let's study. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. इंडिया है एक वास्ट कंट्री है. आपको तो मतलब पता होगा वास्ट क्या होता है.
लाइंग एंटायरली मतलब जो एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर मतलब जो जैसे माउंटेन एरिया होता है वो उसमें हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसका जो लैटिट्यूड है वो इसका जो लैटिट्यूड वाला लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और जो इसका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड और दूसरा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। सो हम इसको पढ़ते हैं। अब इस वाले हम पेज नंबर 3 पे देखो तो एक मैप गिवन है। आई विल ज़ूम आउट फॉर यू। It's a map given in page number 3. From starting Jammu and Kashmir, it's written from starting latitude. जब हम नॉर्थ से साउथ या मतलब ऊपर से नीचे आते हैं वो लैटिट्यूड होता है, और राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से साउथ लेफ्ट से ईस्ट जाते हैं तो मतलब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते तो वो होते लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे जब जम्मू एंड कश्मीर यहाँ इस पॉइंट से लेकर जब हम नीचे कन्याकुमारी जाते उसका डिस्टेंस नहीं, हम उसका लॉन्गिट्यूड जब कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिग्री जो कहेंगे लैटिट्यूडनल डिग्री कहेंगे वो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड 8 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट in north in Kanyakumari. And then longitude we say that from starting from Jammu and Kashmir to Andhra Pradesh it's 68 degrees 7 minutes north east and 97 degree 25 minutes east. So from starting from Gujarat to Andhra Pradesh it's 68 degree 7 minutes north, 27 degree 97 degree 25 minutes east. I will tell you one secret for finding these degrees. Okay. Then if we add 1 second. Yes. Now if we add 29 degree, okay, 29 degree, wait a second, yes, if we add 29 degree to 8 degree, okay, what we'll get? We'll get easily 37 degree, okay. 8 plus 20, first I will tell you easy maths. 8 plus 20, do 8 plus 20, 28. Now easily add 9 to 28, it's 37 degree. Then I will also about Gujarat also 68 degree 7 minutes. अब 68 में 20 ऐड करो, 67 78 88 हुआ, उसमें 9 और ऐड कर दो, क्या हुआ 97. Okay, find it, get it, do it. Now let's study more. What is the size? The Tropic of Cancer divides the country into almost two equal. To the east, southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from the atlas. अब ये कह रहा है the Tropic of Cancer. इसको कॉपी करते हैं हम. Easy method I am telling you. Yeah. अब ये कह रहे हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है ना, वो डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा एकदम एक्यूरेट, आई एम टेलिंग अबाउट ऑलमोस्ट, यानी अप्रॉक्स जो होता है वो डिवाइड कर देता है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट फॉर नॉर्थ एंड 1 पार्ट फॉर साउथ. ओके, टू द साउथ ईस्ट क्या होता है बताओ आप लोग. साउथ ईस्ट ये जहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार पड़ता है, और अरेबियन सी जहाँ पे साउथ वेस्ट जो अरेबियन सी में पड़ते हैं लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, साउथ
ईस्ट जो होता है, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल वहां पे पड़ता है और साउथ वेस्ट में अरेबियन सी। अब हमको फाइंड आउट द एक्सटेंडेड ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम द एटलस। एटलस में आप देखकर बता ही सकते हो कि इंडिया की एक्सटेंड क्या होगी, मतलब मैंने आपको जो अभी तक समझाया है। Now we will study more. Do you know the southmost under the Asia? ये आप खुद रीड करके खुद पॉइंट कर सकते हैं। Given a chance to and comment in the section where it is located. The size, what is the size of India? Let's study. The land mass of India has been an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of total geographical area of the world. From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has land boundary of about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, is 7,516.6 kilometers. Now, I will copy this. Copy. Shift. Control. One second. Yes. अब बोल रहे जो लैंड मास इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर। जो इंडिया पर जितना इंडिया का एरिया है, मास है, वो है 3.28 किलोमीटर। और इंडिया का जो पूरा वर्ल्ड है, जो मतलब पूरा ये वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड वो इंडिया कवर करता है 2.4%। 2.4%। ओके, आई विल डिलीट फर्स्ट। 2.4% वो कवर करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड का। जो इंडिया है वो करता है 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का 2.4%। और जो एशिया है लगभग 30% शायद करता होगा। लेट्स सी, गूगल करना जरूर, शायद 30% ही करता होगा। 30% वो वर्ल्ड का पूरा करता है, 30% करता है एशिया। ओके, लेट्स स्टडी मोर। अब तो हमको क्लियर हो गया होगा फिगर को देखकर कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मैंने बता दी। फर्स्ट पे आती है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। लास्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। It is a very important part of the chapter. This is the very important part in the chapter. I'll make sure that in your exam it will come. I make sure. आगे पढ़ते हैं। अब लिखा है कि जो इंडिया है वो जो इंडिया की बाउंड्री है विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, इन सब से जो बाउंड्री है इंडिया की वो है 15,200 किलोमीटर। जहाँ पे इंडिया की जो वो होते हैं, इंडिया के अब क्या सैनिक होते हैं। ओके, वो सोल्जर्स, इंडिया सोल्जर्स आर देयर ऑन द बॉर्डर्स ना, वो वाले बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाउंड्री वो होते पूरा इंडिया का है 15,200 किलोमीटर। इंडिया का इतना है नहीं, पर इंडिया की बाउंड्री इतनी है किलोमीटर्स की। और हमारी कोस्ट लाइन मतलब जो रिवर्स के पास से ओशन और सीज के पास से जो लाइन, वो ब्लू लाइन है। मैं दिखाते तो कौन सी ब्लू लाइन, देखो ये ब्लू लाइंस जो है ना, ये जा रही है ओशन की तरफ। ओशन, सीज, ये सब इंडिया का कवर करता है 7,516.6 किलोमीटर्स, including Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island. India is bounded by the Yangfold Mountains in the northwest, north and northeast, south of about 22 degree north latitude. It begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into two seas: the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. मैंने आपको समझा ही दिया था ये। Note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree or 29 degree approx होता है। इसका कोई मेजर नहीं है, अभी तक साइंटिस्ट भी मेजर नहीं कर पाए कितना approx इसका परफेक्ट है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. अब सबसे मेन एक और चीज है, एक सेकेंड,
यस, फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू गुजरात। सनराइज हमारा ईस्ट से होता है, ठीक है। ईस्ट में सबसे पहले 5 बजे, अगर 6 बजे हमको आंध्र प्रदेश में सन दिख गया, ओके, सन दिख गया हमको आंध्र प्रदेश में 6 बजे सपोज, ठीक है। मैं आपको परफेक्ट नहीं बता रहा, मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, देखने के लिए। यहाँ पे हमारा, एक सेकेंड आई विल मार्क, यहाँ से हमारा सूरज उगा है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं आधे घंटा, फिर दिल्ली तक आते हैं आधे घंटा, फिर यहाँ पे जाते हैं राजस्थान आधे घंटा, फिर गुजरात को जाने में उसको पूरे आधे घंटा फिर लग जाते हैं। ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंचने में हमको 2 घंटे लग जाते हैं। जो सन है उनका टाइम लैग बिटवीन दीज, ओके। नेक्स्ट, hence time along the standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influence the duration of the day and night as move from south to north, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर। मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लिखा दिया जाता है कि कितने घंटे यहाँ पे हो रहे हैं, कितने वहाँ। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है जो इन्फ्लुएंस करता है डे और नाइट के बिटवीन में, और मूव साउथ, जो मूव करता है हमारा इंडिया, वो साउथ टू नॉर्थ करते हैं, ना कि नॉर्थ टू साउथ। ऐसे नहीं करेगा हमारा अर्थ, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करता है हमारा अर्थ जब भी नॉर्थ साउथ पे जाते हैं, ठीक है। हमने आज कवर किया है, बहुत पार्ट कवर कर लिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाते जाता हूँ, टॉपिक आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं इसकी वीडियोस भी भेजूंगा आपको, इसके लिए नोट्स, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, बैक एक्सरसाइज, मोर। आई विल ऑल्सो सेंड यू सम इंटरेस्टिंग गेम्स for this chapter to understand more, and map work also. I will give you more what you want, okay? Ask me the question in comment, ठीक है। One thing more, so hope you have enjoyed my video and learned from my video. Please subscribe my channel and press bell icon as I show you in the video starting. So there is an option of one thing I also have to show you. 1 minute. Yes, this is my channel studio, so hope you will. There's an option of subscribe for on the, there's a subscribe option, okay. So there I have practiced live stream for this also, how live stream goes, okay. So don't worry, we will learn concept very easy. There is no thing हार्ड, कुछ भी नहीं है मुश्किल, सब आसान है, हम सब कर लेंगे, ठीक है। ये मेरी वीडियो से अब तक इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैंने डाला था कि मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे थे। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 है ये, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 2 एंडिंग था ये, फिर एनसीईआरटी चैप्टर पार्ट 1 था ये, फिर गिविंग अ मैसेज टू शेड्यूल बनाया था मैंने, 1 PM का लाइव स्ट्रीम करी थी मैंने उस समय दूसरे चैनल से। फिर हिस्ट्री का चैप्टर 5 मैंने बनाया था पार्ट 2, फिर पार्ट 1 हाउ टू मेक PDF यूजिंग कैम स्कैनर, और मैंने एक बहुत बढ़िया फिशेस की ड्राइंग बनाई थी लॉकडाउन में, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको सिल्वर जोन प्रोड्यूस बाय स्पॉन्सर्ड बाय सिल्वर जोन दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। आप यहाँ पे जाओगे, ओके, यहाँ पे सर्च करोगे ओलंपियाड, ठीक है। आपको जिसमें ओलंपियाड करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में जाओगे, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, पैसे से भी है और बिना पैसे के भी है। डाउनलोड ऐप, मोर लिंक्स फॉर होम, गो टू होम, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर ऑनलाइन, एग्जाम रिजल्ट भी देयर, एग्जाम schedule भी देयर, फॉर ऑनलाइन देयर विल बी अ Google Docs, okay. So be subscribing my channel, like, share, subscribe. More subscribers will give me some help. I want to buy a new setup, so please give me some support.
Thank you. Have a nice day. It's Shaurya of the Text Expert Study Material. Thank you.